So what is client, what is server? So the thing is, like हम लोग उसको request response reference में नहीं ले सकते. What is server? Can communicate with the server as well as with client. What about client? It can communicate with server only. It can communicate with server only. सिर्फ server से बातचीत कर सकता है. That's actually client. What about server? It can communicate with server as well as client. दोनों से बातचीत कर सकता है. So this is something about client and server. But वैसे देखो तो client की बात करें या server की बात करें, वैसे देखिए की बात करें, both are nothing but actually a computer program. Both are nothing but a program. Okay, so maybe they works on a different machine, maybe they exist on the same machine. हो सकता है कि वो same machine पे भी हो सकता है कि वो different machine पे. It doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो same machine पे भी हो सकता है. Okay, so what is client? What is server? They are the programs, but we have to differentiate कि भाई ये server है क्योंकि उसकी capacity, उसका facility, उसके पास कुछ properties अलग है. What are the properties? Server can communicate with client, with more than one client at a time, with more than one server at a time, but client can communicate with server only. Client can communicate with server. So this is the difference. ये कुछ properties में difference है. Okay, so guys, now what we have to do, client and server are nothing but in program. So अगर मैं इनके लिए जावा का प्रोग्राम लिखूं, so we need a communication. हम लोग को इन दोनों के बीच में communication establish करना है. So for that we have to just follow some protocols. तो यहाँ पे हम लोग TCP/IP protocols follow करने वाले हैं. We will just follow TCP/IP protocols. So TCP/IP का full form है Transmission Control Protocol, Internet Protocol. So we just go through this one also in the last session. Okay, इससे भी हम लोग अभी familiar है. So now the next thing is how to create a server and how to create a client, because हम लोग कुछ अलग-अलग facilities चाहिए. What are the facilities? Client can communicate with server only. Server can communicate with client as well as server. Server दोनों से communicate कर सकता है. So मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जिसके पास ये फैसिलिटी हो. So guys, right now we are working with Java. So Java हम लोग को एक फैसिलिटी देता है कि if you want to develop the server and want to follow TCP/IP protocol, then you have a class, and that class is nothing but a server socket. We have a class, and that class is nothing but a server socket. So if you want to create a server, we have to simply create an object of server socket like that. Now, if you want to create a client, then we have to just create an object of socket. We have to just create an object of socket. We have to create. Is it clear? So we have actually two classes. We have server socket class. We have server socket class, and we have another class that is nothing but a socket. They are just used to create client. They are just used to create server and client respectively. Okay, server socket is just used to create a server, as well as socket class is just used to create a client. Okay, now that's fine. Now that's the thing. Now another thing is both of these classes are from the Java.NET package. Both of these class are from the Java.NET package. Now guys, another thing is अगर मुझे server develop करना है तो हम लोगों ने एक simple सा program लिखा था. Let us just write down class server, public static void main. Okay, अब मुझे server develop. So हमने अभी discuss किया. We will just create an object of server socket. Now we have to just allocate a memory, and here we have to write down any integer number we have to write. What is the role of that integer number? What is the role of that particular integer number? So guys, as we discussed, we will have two programs. Client and server are nothing but programs. Maybe they are the Python program, maybe they are the Java program, maybe they are .NET program, maybe they are PHP programs. Maybe it is also possible कि एक Java program और एक Python program. It's possible. So they are nothing but programs. So मान लो ये दोनों program एक same computer में, server भी मेरे same computer में, client भी मेरे same computer में exist करता है. Then how to identify this is server, this is client? Otherwise, consider there are more than one servers in my machine. There are more than one server program in my machine. Then how to identify this is like I want to communicate with this program? मैं कैसे identify करूँ कि मुझे इसी बंदे के साथ बातचीत करनी है? Let I consider कि इस group में मेरे पास actually right now 22 students and I want to communicate with Tanushree. Then how to identify? So जैसे मैंने आपको नाम बताया तनुश्री, so हो सकता है कि तनुश्री नाम के 2 स्टूडेंट हो, 5 स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट हो. Then I will have a port number. मेरे पास हर एक का unique identification number होगा. So this is nothing but a unique identification number of server. Okay, this is nothing but a unique identification number of server. That means मैं यहाँ पे server develop करने के time अपने कंप्यूटर को बोलूँगा sir,
चाहे वीएम को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेंगे, ओ सर और प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे इस प्रोग्राम को 1000 नंबर के साथ कनेक्ट कर देना। सो इन फ्यूचर किसी बंदे ने अगर 1000 नंबर के लिए रिक्वेस्ट किया, then please connect that request, otherwise forward that request to this program only. Okay, so what is the meaning of this 1000? What is the meaning of this 1000? I want to launch the program, I want to launch this program on this given number, that's it. But now is it possible कि ये number already reserved है? Is it possible कि ये number already reserved है? Yes guys, that is possible. Then what will happen? Then the server socket class will throw an exception. Okay, that is the bind exception. So we have to handle, we can handle that exception in either of the way. Either you have to use try and catch, otherwise guys you can just write down throws exception over here. Okay, so that choice is yours. Either you apply your throws exception, otherwise you can just wrap this code. अपने पास सिर्फ 2 लाइन का कोड है. You can wrap this code in try and catch. Let I save and let me just go through this. So yeah, that is core Java. Let I okay, मैं एक फोल्डर यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ सॉकेट प्रोग्रामिंग, एंड लेट मी सेव दिस प्रोग्राम बाय server1.java. ओके, हम लोग इसको कंपाइल कर देते हैं इस पहले. सो जावा सी server1.java. ओके, नाउ इट थ्रोज द एरर. क्या एरर है गाइस? द एरर इज कैन नॉट फाइंड द सिंबल. विच सिंबल? इट इज सर्वर सॉकेट. तो अगर ऐसा एरर आता है या तो स्पेलिंग मिस्टेक है, अदरवाइज पैकेज नहीं लिखा आपने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया. तो मैं पैकेज इंपोर्ट कर देता हूँ पहले. नाउ लेट आई कंपाइल दिस, लेट मी रन दिस प्रोग्राम. सो गाइस प्रोग्राम रन होके बंद हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके क्लोज हो गया. सो मुझे एक एनी हाउ इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना है. ओके, सो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, thread.sleep. मुझे एक्चुअली 10 सेकंड्स तक इसको होल्ड पे रखना है. ओके, मैं मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज 1000 इन द सेंस यहाँ ब्रैकेट में मिली सेकंड्स लिखा जाता है. सो 10 सेकंड मतलब 10,000 मिली. ओके, नाउ लेट आई कंपाइल एंड रन दिस. तो अभी 10 सेकंड तक प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलेगा. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मैं सेकंड प्रोग्राम मतलब एक और बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू रन द सेम प्रोग्राम. सो वो एग्जीक्यूट होगा या एरर थ्रो करेगा, आई वांट टू जस्ट चेक. ओके, सो मुझे दोनों प्रोग्राम को रन करना है, दोनों प्रोग्राम को पैरेलली रन करना है. सो एरर थ्रो करेगा या एग्जीक्यूट होगा, मुझे चेक करना है. सो राइट नाउ दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुके हैं. रीजन इज 1 by 1 एग्जीक्यूट हुए. ओके, नाउ लेट वंस अगेन we just execute Java server in a first command prompt, and let me execute Java server in a second. So now it throws the error. What is the error? Bind exception. What is the error? Bind exception. Why? Because address already in use. So अगर आपका एक प्रोग्राम ये 1000 नंबर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, then second program cannot work on the 1000 number. So what is the meaning of this 1000 number? It is just used to uniquely identify your program. जब आपका क्लाइंट सर्वर के लिए रिक्वेस्ट प्लेस करेगा, क्लाइंट जब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि सर्वर का एड्रेस क्या है. लेट ऐसे मुझे आपसे बातचीत करनी है या आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो मोबाइल नंबर पता होना चाहिए. वी कैन कम्युनिकेट. इन द सिमिलर वे दिस इज जस्ट यूज्ड टू लॉन्च द प्रोग्राम, और दिस बाइंड द प्रोग्राम विद दिस पोर्ट नंबर. सो वी हैव टू वेज टू हैंडल दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन कि अगर ये पोर्ट नंबर बिजी है, then either you can just handle the exception by using this throws exception. Another option is तो हमारे पास जो आउटपुट आया था, ये जो आउटपुट जो प्रॉब्लम आया था, वो जावा खुद हैंडल करके जेवीएम खुद इसका मैसेज देगा कि कौन सी लाइन में एरर है. सो प्रोग्राम नेम इज server1.java. इन दैट 7th लाइन, जो 7 नंबर का लाइन है, इट हैज अ प्रॉब्लम. ओके, 7th नंबर के लाइन में कुछ प्रॉब्लम, तो ये हमको पता था. नाउ अनदर थिंग इज लेट आई जस्ट यूज ट्राई एंड कैच to handle this exception. Okay, let me just write down like this. और ये exception के अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ like server is already busy, otherwise port number is engaged, port number is in use. Then I just give this message. Okay, so now अब Java C server2.java रन कर लेते हैं. server2.java रन करते हैं. ओके, नाउ देखो क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो राइट नाउ क्लास नेम इज सर्वर, फाइल नेम इज server2.java. स्टिल इट विल गो. ओके, तो यहाँ पे सर्वर रन किया हमने. नाउ लेट मी जस्ट रन द सर्वर ओवर हियर आल्सो. तो अब मुझे मैसेज क्या आया, गाइस? यहाँ पे तो वर्क कर गया, देखो ये चल रहा है, बट यहाँ पे मुझे मैसेज क्या आया? सर्वर इज ऑलरेडी इन यूज. Okay, sorry, port number is already in use.
why there is a message, this type of message is there because हमने try catch से exception को handle किया. जब भी exception generate होगा directly control will be forwarded to your catch block. So that's that. Choice is yours. आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो. Choice is yours. Okay, you can guys just use throws exception. So अगर आपको particular तरीके का message देना है तो आप throws exception ignore करें and just use try and catch. Just use try and catch. I hope that's clear. Now another thing is this is something about the server. Now let me create a client. So client के लिए हम लोगों ने क्या discuss किया था? For client we have to use one thing. Okay, let I just create a client program. So for the client, we have to just use a socket class. So socket का object बनाएंगे. Socket s is equals to new socket. Now guys, can you please tell me ये client किसको मिलने वाला है? Otherwise ये client का कामकाज कब होगा? Client किससे communicate कर सकता है? So client को सिर्फ और सिर्फ server से ही communicate करना है. तो जैसे client start होगा, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, बट सर्वर तब तक चालू होना चाहिए, सर्वर वर्किंग पोजीशन में होना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट्स द फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट. अनदर थिंग इज क्लाइंट लॉन्च होते ही सर्वर से कनेक्शन करने की ट्राई करेगा. तो क्लाइंट को क्या चीज की जरूरत होगी? पहली चीज, सर सर्वर कौन से नंबर पे चल रहा है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया माय सर्वर इज वर्किंग ऑन 1000. ओके, तो पहली चीज मुझे 1000 पे जाना है. सेकंड थिंग इज सर्वर कौन से कंप्यूटर में, दैट मींस वी रिक्वायर्ड एन आईपी एड्रेस ऑफ दैट. तो जब आप सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी है. द फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस. अभी मेरा दोनों सर्वर एंड क्लाइंट दोनों प्रोग्राम सेम मशीन पे है, सो आई विल जस्ट यूज लोकल होस्ट एंड आफ्टर दैट अ पोर्ट नंबर. नाउ हो सकता है कि ये पोर्ट नंबर आपने गलत दिया, अदरवाइज इस पोर्ट नंबर पे आप वर्क करना चाहते हो बट सर्वर वहां पे नहीं है, सर्वर ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है. So guys, this function also, this constructor also throw an exception. So there are once again two ways to handle this. The first one is throws exception, and another one is nothing but a what we can do, try and catch. We can use try and catch as well as you can just use throws exception. So now let I can compile the client program. Oh, that's once again there is a problem. What's the problem? Cannot find the symbol. So what's the solution? इसको कैसे solve करें? Firstly we have to check spelling is right or wrong. So socket का spelling सही है. Another thing is, did you import the package? No, we didn't. So what we have to do, we have to just write down import java.net, import java.net.star. That's that. Let me compile this. Compile करने के बाद guys मैं इसको run कर रहा हूँ, but server को मैंने start नहीं किया, so it will throw an error. Oh, that's the error. Oh sir, like connection exception is there. Connection is refused. That's the error. इतना बड़ा मुझे आंसर क्यों मिला? Because I just use throws exception. And means I just throw the exception to JVM. मैंने अपने exception को JVM को forward किया ना. JVM by default technique use करेगा इसको handle करने के लिए. That's that. So that is how to create a server, how to create a client. So I hope that is clear. That is clear to everyone how to create a server and how to create a client. Guys, कुछ problem हो तो पूछ सकते हैं. Yes, I am waiting. If any problem, then you can ask guys. Yes, Kaushik, Pakre sir, Penil sir, Deepak sir, Tanushri madam. Is there any problem guys? Zui madam, fine. So अगर किसी को problem है तो बीच में भी आप लोग मतलब बोल सकते हो. It's not a matter. So finally, how to create a server, how to create a client. But sir, I have one more question. Sir, client and server connect कैसे करेंगे? So guys, server already working mode में होना चाहिए. Okay, और वो infinitely wait करेगा client के connection के लिए. So should I just write down this type of code? No, we have not to write down this type of code. हम लोग thread करके उसको sleep नहीं करा सकते. So what to do? What to do guys for that? So हम लोग को कब तक वेट करना है? जब तक client रिक्वेस्ट नहीं करता. मान लो client ने पहली सेकंड में रिक्वेस्ट कर दिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा और आगे काम करना है, मतलब कम्युनिकेशन करना. क्लाइंट ने 2 आवर्स तक रिक्वेस्ट नहीं किया तो 2 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा. सो वी हैव नो आइडिया अप टू व्हाट मुझे रिक्वेस्ट मतलब वेट करना, अप टू व्हाट टाइम I have to wait or up to what time I have to put in a hold mode. Otherwise, like मुझे blocking thread कब तक बनाना है? I have no idea. So guys, the thing is, let I just save this. Okay, मैं इस code को remove कर देता हूँ. So now, what you have to do? What is your server socket object name? That is SS. SS के पास एक method है, that is accept. What it will do? जैसे client request करेगा, this accept method will accept the request. जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, दिस एक्सेप्ट मेथड विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. और सर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं किया तो देन दिस इज द ब्लॉकिंग थ्रेड. दिस एक्सेप्ट मेथड
will stop the execution, कब तक? जब तक क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, this accept method will stop the execution of your server program up to what time? जब तक वो क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। लेट मी चेक, मुझे चेक करना है। बट सर नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लाइंट में रिक्वेस्ट कैसे करें? सो गाइस दिस कंस्ट्रक्टर, लाइन नंबर 7, दिस कंस्ट्रक्टर is just used to, this constructor is responsible to create the object of socket. This constructor is just used to create an object of socket as well as it is just used to make a request to server. इसके दो काम, ओके, सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही वो रिक्वेस्ट प्लेस कर देगा। सो क्लाइंट पे तो मुझे कोई चेंजेस ही नहीं करना है। मैं इसको अभी क्लाइंट 3 के नाम से सेव कर रहा हूँ बिकॉज सामने मेरे पास सर्वर 3, सो सर्वर 3 एंड क्लाइंट 3 पेयर बना रहे हैं हम लोग। ओके, सो नाउ लेट मी रन बोथ ऑफ दिस। So Java C, server 3.java and Java server. तो अब देखो सर्वर वेटिंग मोड में, कब तक वेटिंग मोड में रहेगा? लेट मी वंस अगेन ओपन द सर्वर प्रोग्राम। सो पहले तो मैंने सर्वर सॉकेट क्रिएट किया, ओके, तो उसने चेक किया, oh this 1000 is engaged with some another guy or not. So if it is not, then आगे जाएंगे sh.accept, now it will wait। कब तक वेट करेगा? जस्ट चेक, वेट कर रहा है मेरा प्रोग्राम, कमांड प्रॉम्प्ट में आगे कुछ भी नहीं आ रहा। कब तक वेट करेगा? जब तक कोई क्लाइंट कनेक्ट नहीं होता। Okay, so we have not to use actually thread.slave. Okay, now let us just compile the client and let me run a client program. तो client में हमारा कोडिंग क्या था? It was too much easy, like it was too much simple. हमने सिर्फ सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया। So what is the responsibility of this code? It will just make a request to the server. That's it. Let us just enter. Let us just press the enter. So what happened? देखो सर्वर का प्रोग्राम बंद हो गया, सर्वर का प्रोग्राम स्टॉप हो गया। So why it stopped? ये क्यों बंद हो गया? बिकॉज हमारे पास जो ब्लॉकिंग थ्रेड था, उसका कामकाज कंप्लीट हो गया, उसने क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। That's that, our task is done. So now what to do? After that मुझे एक सिंपल सा मैसेज देना था, oh client is connected। मुझे एक सिंपल सा मैसेज देना था, client is connected। What is client name? I am like that doesn't matter right now. ओके, मुझे सिर्फ इतना लिखना था, क्लाइंट इज कनेक्टेड, और सामने मुझे सर्वर पे मैसेज, सॉरी क्लाइंट पे मैसेज देना था, और सर्वर इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद एक मैसेज दे देते हैं, सर्वर इज कनेक्टेड। दैट्स इट। नाउ लेट मी कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। सो सर्वर वेट कर रहा है। सो नाउ लेट मी रन अ क्लाइंट प्रोग्राम। सो जस्ट चेक, क्लाइंट यहाँ पे सर्वर पे मैसेज आया, क्लाइंट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। And on server, on client, we just got the message, server is successfully connected. Okay, but now the thing is, sir, मुझे actually client के पास कुछ सर्वर की इंफॉर्मेशन है कि कौन से सॉकेट पे है, मतलब कौन से आईपी एड्रेस पे लॉन्च्ड है, कौन से पोर्ट नंबर पे लॉन्च्ड है। तो क्लाइंट के पास तो सर्वर का कुछ इंफॉर्मेशन है, तो उसको मैं प्रिंट करूँ क्या? बिकॉज ये इंफॉर्मेशन को मैंने जावा के पोर्शन में, जावा के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। जावा इज ए प्योर ओप्स एज वी नो, तो जावा फॉर्मेट इन द सेंस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, तो मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू प्रिंट दैट एस। तो मुझे चेक करना है कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सो सर्वर रन करते हैं ऑन ए क्लाइंट साइड, लेट आई जस्ट रन क्लाइंट, सो आई विल जस्ट गेट सम इंफॉर्मेशन। सो सर्वर इज कनेक्टेड एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं एस को प्रिंट करने पे। तो हमने एस के अंदर क्या स्टोर किया था? एस इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू थिंग, लोकल होस्ट एंड 1000। ओके, लोकल होस्ट 1000. So what it prints? It just prints address of localhost 1000. मतलब ये डेस्टिनेशन का डेटा है। या मुझे डेस्टिनेशन मतलब इस बंदे के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। ओके, इस बंदे के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, क्लाइंट के पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, इन शॉर्ट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, एंड द पोर्ट नंबर इन द सेंस उसका यूनिक नंबर जिस पे लॉन्च्ड है। What about this one? What about this local port? Local port in the sense what? ये क्लाइंट का पोर्ट नंबर है, ये क्लाइंट का पोर्ट नंबर है कि क्लाइंट भी कोई यूनिक नंबर के साथ स्टार्ट हो, तो सर्वर भी आइडेंटिफाई तो करेगा ना। जैसे मान लो आप कोई सर्वर को फोन करो, ले कैसे है कि आपने पिज्जा हट वाले को कॉल किया, तो पिज्जा हट पे आपका नंबर तो जाएगा ही जाएगा। सो यू आर ए क्लाइंट, तो आपका भी कोई यूनिक नंबर होना चाहिए। सर्वर आपको जब डेटा सेंड करेगा तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये आपका डेटा है? तो एक्चुअली क्लाइंट के पास दो इंफॉर्मेशन थी, एक तो सर्वर की इंफॉर्मेशन और एक खुद का लोकल पोर्ट। नाउ गाइस अनदर थिंग इज सर्वर के पास भी ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर्वर के पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्लाइंट कौन से आईपी एड्रेस पे लॉन्च्ड है और क्लाइंट का कौन सा पोर्ट नंबर। सर्वर के पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेट कैसे करेगा? सो सर्वर पे
कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है सर? ये एक्सेप्ट मेथड से, ये एक्सेप्ट मेथड से। सो गाइस एक्सेप्ट मेथड एक्चुअली सॉकेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एक्सेप्ट मेथड एक्चुअली सॉकेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। okay so like whenever you will, अगर आप उसको स्टोर नहीं करते then it will be ignored, but if you want to get the information about the client on a server program, what we have to do, we have to just store the answer of accept method in a socket object. So now let me print that socket object. So what's the actually pattern? इसका पैटर्न क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या दिखाता है वो? सबसे पहले दो आर्ग्यूमेंट्स, जैसे आप देखिए ना यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, AWDR and another information is nothing but port. So ये इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी की, मतलब अगर दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट आवर इन्फॉर्मेशन, ये सामने वाली पार्टी की इन्फॉर्मेशन है। ओके तो क्लाइंट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन सर्वर की है, तो पहले आईपी एड्रेस, सर्वर कौन से आईपी एड्रेस पे लॉन्च है, एंड सर्वर का यूनिक पोर्ट नंबर क्या है, और उसके बाद जो लोकल पोर्ट करके लिखा हुआ है वो खुद का पोर्ट नंबर है। तो हमने सर्वर पे भी कुछ डिटेल्स डिस्प्ले कराई। लेट आई जस्ट ओके फर्स्टली लेट आई कंपाइल द प्रोग्राम, when I compile the program, let me run the program. Now on a client side, let me compile the program, let me run the program. So now just check, सर्वर की बात कर रहा हूँ, पहले मैसेज आया client is connected. Now जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे इसको फोकस करें, कुछ लिखा हुआ है एड्रेस 127.0001, एड्रेस 127.001, that means what? बीच में पॉइंट नहीं बोल रहा, 127.0.0.1, that is what? क्लाइंट कौन से आईपी एड्रेस पे लॉन्च है, क्लाइंट कौन से आईपी एड्रेस पे वर्क करता है, दैट्स दैट। नाउ व्हाट अबाउट दैट पोर्ट, दैट इज 50157, दैट इज क्लाइंट यूनिक नंबर। लेट मी चेक, क्लाइंट के अंदर देखिए, क्लाइंट के अंदर चेक करें, क्लाइंट का लोकल पोर्ट क्या था, नीचे जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें मैंने हाईलाइट किया, क्लाइंट का लोकल पोर्ट क्या था, 50157, 50157, तो ये क्लाइंट का लोकल पोर्ट है। ओके सो एज आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग में जो दो वैल्यू मिलेगी सर्वर पे भी, स्टार्टिंग में जो मतलब सॉकेट को जब डिस्प्ले करोगे, सॉकेट के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करोगे, तो स्टार्टिंग में जो दो वैल्यू है मेरे पास, व्हाट इज दैट? इट्स नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकंड पार्टी, मतलब जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आप सर्वर बना रहे हो तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होगी, क्लाइंट बना रहे हो सर्वर की इंफॉर्मेशन। और व्हाट अबाउट दिस लोकल पोर्ट, ये अपना खुद का पोर्ट नंबर है, ये अपना खुद का पोर्ट नंबर। सो आई होप दैट्स क्लियर गाइस, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आया होगा। Okay, now another thing, if someone says sir मुझे 5 क्लाइंट कनेक्ट करने हो तो, मुझे 10 क्लाइंट कनेक्ट करने हो तो, मुझे 2 क्लाइंट कनेक्ट करने हो तो, so let me just write down the code for that. So अब मुझे कामकाज करना था, like let I just comment over here, connect 2 clients and display information of them. Okay, 2 क्लाइंट को कनेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी। So let I just create a client firstly. सो मैंने दोनों में से कोई भी प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं किए। सो क्लाइंट पे तो काम कच किया होगा, रिक्वेस्ट करना है सर्वर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करना, हियर इट इज। बट सर ऐसे 2 क्लाइंट बनाने, तो सेम प्रोग्राम 2 बार रन कर लो, सेम प्रोग्राम 2 टाइम्स एग्जीक्यूट कर लो, तो आपके 2 क्लाइंट हो जाएंगे। सर्वर पे क्या करना है, तो पहले तो सर्वर पे 1000 नंबर पे उसको लॉन्च करें, इस प्रोग्राम को 1000 नंबर पे लॉन्च करें सर, उसके लिए तो सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट इनफ है। आफ्टर दैट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, सर 2 क्लाइंट को कनेक्ट करना, तो गाइस आपको 2 बार एक्सेप्ट मेथड लिखना पड़ेगा, इन शॉर्ट जितने क्लाइंट उतने एक्सेप्ट मेथड। ओके अब दोनों के लिए मैं एक्चुअली डेटा प्रिंट कर देता हूं, क्लाइंट इज कनेक्टेड S1, क्लाइंट इज कनेक्टेड S2। सो नाउ लेट मी रन। सो हियर आई रिक्वायर्ड 3 कमांड प्रॉम्प्ट्स, आई रिक्वायर्ड हियर वी रिक्वायर्ड 3 कमांड प्रॉम्प्ट्स रिक्वायर्ड। सो दिस इज माय थर्ड वन, जहां पे मैं एक्चुअली सर्वर एग्जीक्यूट कर देता हूं। सो दैट इज फॉर माय सर्वर। ओके दिस इज फॉर माय सर्वर। Now let me just, this is my first command prompt for the client. One minute, थोड़ा रिसाइज कर देता है इसको। So this is second client, so I hope that's fine. Okay, so पहले सर्वर रन करते हैं। So java c server code.java and java server. Now guys observe one thing, in server what we write down, हमने accept method continuously 2 times लिखा है। That means what, जब तक दोनों accept method काम नहीं करते आगे नहीं बढ़े, continuous in the sense sequential execution pattern में लिखा है। Okay, sequential statements के pattern में हमने लिखा है। So line number 10, it will just, line number 10 में जो accept method लिखा है उसका काम काज क्या होगा, it will just hold the execution of my program। कब तक, जब तक कोई क्लाइंट कनेक्ट नहीं होगा। जैसे क्लाइंट कनेक्ट होगा उसकी टोटल इंफॉर्मेशन S1 में स्टोर कर देगा,
आगे बढ़ते हैं। अब ये मेथड का कामकाज क्या है, वो भी होल्ड पे चला जाएगा, वो भी अपने प्रोग्राम को होल्ड पे रखेगा। क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो ए ब्लॉकिंग थ्रेड, इट इज ऑल्सो ए ब्लॉकिंग थ्रेड। सो वो कब तक होल्ड पे रखेगा अपने प्रोग्राम को? जब तक कोई क्लाइंट कनेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पे गाइस पहला क्लाइंट कनेक्ट होगा या द सेकंड क्लाइंट विल बी कनेक्ट। तो जब तक वो कनेक्ट नहीं होती, ये होल्ड पे रहेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट प्रिंट द इंफॉर्मेशन। सो लेट मी चेक कि कैसे वर्क कर रहा है। सो जावा सर्वर, लेट अस जस्ट रन द सर्वर। क्लाइंट पे आते हैं। सो जावा क्लाइंट 4, ओके जावा सी, what happened? Java C client 4.java Java client। ओके, सो देखो ना यहाँ पे एक मेरी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई। सर्वर इज कनेक्टेड, सॉकेट इज लाइक सॉकेट एड्रेस इज इक्वल टू लोकल होस्ट, पोर्ट इज 1000 और खुद का लोकल पोर्ट क्या था? दैट इज एक्चुअली 150171 50171। वो प्रोग्राम कंप्लीट भी हो गया बिकॉज क्लाइंट में हमने इतना ही लिखा था कि कनेक्शन हो जाए, सर्वर की डिटेल डिस्प्ले कर दो, आप फ्री। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड प्रोग्राम? लेट मी रन दैट। ठीक है, लेट मी रन द सेकंड। मैं भी कंपाइल नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी कंपाइल। अब देखो सर्वर पे अब मैसेजेस आए। अब सेकंड क्लाइंट का पोर्ट नंबर क्या था? सेकंड क्लाइंट का पोर्ट नंबर क्या था? दैट इज 50181। तो अब देखो अब सर्वर पे मैसेजेस आए, the client is connected and that is first client is on actually local host which is 127.0.0.1 and the IP address, sorry, port number of that one is 50171. second client's port number is actually 50181. So in short अब मुझे client की total information यहाँ पे print हो रही है because we just use a blocking thread twice। हमने इसको 2 times यूज किया था। तो पहला कंप्लीट होने के बाद दूसरा उसको ब्लॉक करते हैं। तो जब पहला स्टेटमेंट रन होगा, फर्स्ट क्लाइंट कंप्लीटली कनेक्ट होगा। सो लाइन नंबर 9, सॉरी लाइन नंबर 10 का ss.accept जो हमने लिखा है लाइन नंबर 10 पे, वो ब्लॉकिंग थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा और लाइन नंबर 11 पे आके होल्ड करेगा। ओके, जैसे लाइन नंबर 11 का कामकाज कंप्लीट, we are having a two print functions, तो उसको डेटा प्रिंट करते हैं। so that's that in short how to connect client and how to connect server। so अब तक हम लोगों ने सिंपल सी चीजें मतलब यहाँ पे लर्न की है, how to create a server, how to accept the client request on a client side, how to create a client and how to make a request, that's it। so finally we are ready to establish the communication। so now guys अब मुझे ऐसा करना था कि okay now sir server wants to send something to the client। जिसे कनेक्शन हो जाता है, जैसे सर्वर और क्लाइंट का कनेक्शन हो जाता है, सर्वर wants to say hi, सर्वर एक्चुअली हाई भेजना चाहता है। ओके, सो लेट मी जस्ट डिफाइन अ सर्वर फर्स्टली। सो मैं सर्वर बनाने के लिए क्या लिखूंगा? हम लोग पहले स्क्रिप्ट से पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द सर्वर। तो सर्वर के लिए ऐसा कुछ लिखना था हम लोग को। लेट वंस अगेन आई एम यूजिंग जस्ट 1000 पोर्ट नंबर। ओके, बट एज वी नो दिस सर्वर सॉकेट required one package to support, that is actually java.net, and it will throw an exception। So to handle the exception, we have two ways. Either we can just close the exception, otherwise we can just use try and catch। तो यहाँ तक कहानी complete। Now another thing is client को मुझे client का request मुझे accept करना है। Then I have a method that is accept method। So socket s equals to access dot accept। So इसका मतलब क्या हुआ? Yes anyone? कौशिक, सत्यम सर, इसका मतलब क्या हुआ? ss dot accept मतलब client का request accept करेंगे और उसकी total information किसमें stored होगी? सॉकेट के पास। उसकी टोटल इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? राइट नाउ मेरे पास एक ही सॉकेट का ऑब्जेक्ट है, दैट इज एस। तो एस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। मान लो 5 क्लाइंट होते तो मेरे पास पांचों की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मान लो रिस्पेक्टिवली S1 S2 S3 S4 और S5 में स्टोर होती। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? सर्वर वांट्स टू से समथिंग, सर्वर वांट्स टू सेंड सम डेटा टू द क्लाइंट, सर्वर वांट्स टू सेंड सम डेटा टू द क्लाइंट। बट कौन सा क्लाइंट? कंसीडर यू हैव 5 क्लाइंट्स। हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, कहां पे इंफॉर्मेशन? सॉकेट के पास। हमारे पास इंफॉर्मेशन है सॉकेट नाम के। इन शॉर्ट राइट नाउ दैट्स नथिंग बट एन एस। सॉकेट के ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास टोटल इंफॉर्मेशन। सो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, कंसीडर ये आपके पास एक सर्वर है, दिस इज अ सर्वर प्रोग्राम। नाउ कंसीडर देयर आर 2 क्लाइंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्लाइंट, दिस इज द सेकंड क्लाइंट। ओके, तो इन दोनों से मुझे कम्युनिकेशन करना है, इन दोनों से मुझे कम्युनिकेशन करना है। लेट आई जस्ट ड्रॉ इट सेपरेटली, इसको यहां रखते हैं। सो नाउ इन दोनों से अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो व्हाट हैपन एक्चुअली,
ये प्रोग्राम के साथ, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया सर्वर के साथ, जब आप कनेक्टिविटी करने की ट्राई करोगे, यू विल हैव 2 सॉकेट्स ऑफ, आपके पास यहाँ पे 2 सॉकेट बन जाएंगे. फर्स्ट सॉकेट हैविंग एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट क्लाइंट, सेकंड सॉकेट हैविंग एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेकंड क्लाइंट. And in this program also you will have a socket. In this client program also you will have a socket. In short, if you want to establish a communication, socket is this, nothing else. If you want some communication between the programs, you have to use socket. Just to focus on that. हम लोगों ने जब इससे पहले वाला प्रोग्राम बनाया, so सर्वर की टोटल इंफॉर्मेशन किसमें थी? सॉकेट के ऑब्जेक्ट में. सर्वर साइड पे क्लाइंट की टोटल इंफॉर्मेशन किसमें थी? सॉकेट के अंदर. इन शॉर्ट, क्लाइंट और सर्वर में अब दोनों एंड पे सॉकेट. सो गाइस, सॉकेट इज रिस्पांसिबल फॉर द कम्युनिकेशन. ओके, अब सॉकेट का इंटरनल पैटर्न कैसा होता है वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं. सॉकेट के पास इंटरनल पैटर्न कैसा होता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट आल्सो. ओके, 1 मिनट. ओके, सो गाइस, now this is something about okay, now let I just first draw. मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 रेक्टेंगल बनाए, और ये दोनों रेक्टेंगल एक्चुअली फर्स्ट सॉकेट के साथ कनेक्टेड है. दोनों रेक्टेंगल एक्चुअली फर्स्ट सॉकेट के साथ कनेक्टेड है. ओके, इस तरीके से कुछ मैंने ड्रॉ किया है. नाउ दैट्स दैट. अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे भी 2 रेक्टेंगल होंगे, और दोनों रेक्टेंगल एक्चुअली सॉकेट के साथ कनेक्टेड है. इन शॉर्ट, हर एक रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स हर एक सॉकेट के पास कनेक्टेड रहना है. सो व्हाट इज दैट? सो लाइक मैंने ऐसा बोला था कि लाइक अगर मान लीजिए मुझे कम्युनिकेशन कराना है, इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो दोनों एंड पे मेरे पास सॉकेट है. ओके, दोनों एंड पे मेरे पास सॉकेट है, दूसरा कुछ भी नहीं है. सो व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट सॉकेट? वो सॉकेट एक्चुअली क्या करके देगा मुझे? तो सॉकेट के पास गाइस अभी जैसे आपको दिख रहा है कि 2 रेक्टेंगल्स हैं. व्हाट अबाउट द 2 रेक्टेंगल्स? वो 2 रेक्टेंगल का कामकाज क्या है, हाउ इट वर्क्स. ओके, एंड ये मैकेनिज्म क्या है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं. So one rectangle is for input stream and another rectangle is for output stream. One rectangle is for the input stream. Now what is that stream? So as we discussed कि जब आप कम्युनिकेशन कराते हो, कोई 2 चीज के बीच में कम्युनिकेशन कराना, लेट ऐसे कि मेरे पास एक सर्वर था, एक क्लाइंट है, मुझे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है. Then firstly we have to like follow some protocols. So अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल की बात करूं, so कम्युनिकेशन HTML फॉर्मेट में होगा. अगर मैं लाइक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करूं तो कम्युनिकेशन फाइल फॉर्मेट में होगा. तो गाइस, अगर आप TCP/IP प्रोटोकॉल की बात करें तो कम्युनिकेशन एक्चुअली बाइनरी फॉर्मेट में होगा. ओके, नाउ लेट आई से कि मैं आपको हेलो पास करना चाहता हूं, तो मेरे एंड से डेटा चला गया. कंसीडर मैं जो नेटवर्क स्पीड पे काम करना था, लेट आई से कि मैं YouTube, लाइक मेरे पास YouTube का सर्वर है, तो जिस नेटवर्क स्पीड पे मैं काम कर रहा हूं, लेट आई से 4 Gbps पे मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा आउटगोइंग 4 Gbps, बट आप kbps या mbps पे वर्क, देन मेरी साइड से डेटा निकल चुका, वो डेटा जाएगा कहाँ? आपका प्रोग्राम एंगेज्ड नहीं रहेगा. सो व्हाट हैपेंड, अगर मान लो व्हाट अबाउट दिस वन, ये पहला जो लिखा वो क्या है? सो दिस इज माय फर्स्ट सॉकेट, दिस इज माय फर्स्ट सॉकेट, मतलब पहला क्लाइंट. व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज माय सेकंड सॉकेट, मतलब सेकंड क्लाइंट का डेटा. ओके, तो अगर आप पहले क्लाइंट को डेटा, मतलब दिस इज माय सर्वर, अगर आप पहले क्लाइंट को डेटा देना चाहते हो, देन आपको अब डेटा कहाँ पे फॉरवर्ड करना है? यू हैव टू जस्ट फॉरवर्ड द डेटा on actually first socket object. Okay, आपको यहाँ से डेटा फॉरवर्ड करना है फर्स्ट सॉकेट. तो क्लाइंट के सर्वर के पास, जैसे इस प्रोग्राम में मेरे पास 2 बंदों ने कनेक्टिविटी की थी, तो सर्वर के पास हर एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन S1 और S2 है. S1 के अंदर पहले क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, S2 के अंदर सेकंड क्लाइंट की इंफॉर्मेशन. सो अगर आप फर्स्ट क्लाइंट को मैसेज देना चाहते हो तो आप S1 पे फॉरवर्ड करें. अब S1 पे यहाँ पे 2 चीज अवेलेबल होगी. ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक बार समझ में आ गया देन आगे काम आएगा. तो यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम होगा और एक आउटपुट स्ट्रीम होगा. एक इनपुट स्ट्रीम होगा, एक आउटपुट स्ट्रीम होगा. सामने भी हमारे पास एक इनपुट स्ट्रीम होगा, एक इनपुट स्ट्रीम होगा, एंड वन इज आउटपुट स्ट्रीम एक्चुअली. ओके, one is input stream, one is output stream. Here also we have one is input stream, one is output stream. Okay, थोड़ा नाम मतलब रेक्टेंगल छोटे बने हुए, but just consider. Okay, one is input stream, one is output stream.
ओके, नाउ हाउ इट इज कनेक्टेड। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरा माइक आपके स्पीकर के साथ कनेक्टेड होगा, आपका स्पीकर मेरे माइक के साथ कनेक्टेड होगा, बट अब रिवर्स में होगा। सो गाइस, अब मैंने देखिए यहाँ पे कुछ कनेक्शन इस तरीके से बना रखे हैं कि एक इनपुट स्ट्रीम सामने वाले के आउटपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये आउटपुट स्ट्रीम सामने वाले के इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड। दिस इज द मैकेनिज्म। अब ये कौन प्रोवाइड करेगा सर? ये सब कुछ सॉकेट इंटरनली प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे, इंटरनल ये कनेक्शन बन जाएगा, ये डायग्राम इंटरनली बन जाएगा। एंड एज यू नो, TCP/IP इज कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन बनना मतलब ये मैकेनिज्म डेवलप करना, कनेक्शन डेवलप करना मतलब इंटरनली ये मैकेनिज्म डेवलप करना। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे यहाँ से हेलो पास करना, मुझे सिर्फ यहाँ से हेलो पास करना है। लेकिन से मेरे सॉकेट ने, सॉरी मेरे सर्वर ने यहाँ से हेलो पास किया। Now what will happen, this hello, मुझे फर्स्ट क्लाइंट को ये हेलो देना था, so this hello will be forwarded to this S1। यहां से मैं पास कर रहा हूं, that means वो आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली वो सामने वाले के इनपुट स्ट्रीम में जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कहां जाएगा? सामने वाले के इनपुट स्ट्रीम। तो क्लाइंट पे मुझे क्या यूज करना होगा? आई हैव टू यूज इनपुट स्ट्रीम टू रीड द डेटा, आई हैव टू यूज इनपुट स्ट्रीम टू रीड द डेटा। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सबसे पहली चीज हम लोग को क्या करनी है? we have to just establish the connection between client and server। so client पे एक सॉकेट होगा, सर्वर पे एक सॉकेट होगा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे आगे क्या काम काज करना है? सर्वर से मुझे डेटा फॉरवर्ड करना है या रीड करना है? सर्वर पे मुझे डेटा फॉरवर्ड करना है या रीड करना है? दैट इज योर फर्स्ट कंसेप्ट। सो मुझे डेटा फॉरवर्ड करना है, देन आपको एट एनी हाउ यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा टू दिस आउटपुट स्ट्रीम। सर्वर से आप अपने सॉकेट, अब मेरे पास दो सॉकेट थे सर, S1 और S2। आप कौन से क्लाइंट को मैसेज करना चाहते हो? सर फर्स्ट क्लाइंट को। सो फर्स्ट क्लाइंट का सॉकेट का नाम क्या है सर? S1। सो S1 पे आप सिर्फ उसके आउटपुट स्ट्रीम में डेटा फॉरवर्ड। व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली द डेटा विल बी फॉरवर्डेड टू द इनपुट स्ट्रीम ऑफ अनदर क्लाइंट, ऑफ दैट क्लाइंट। इनपुट स्ट्रीम में डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा, सो वहां से आपको रीड करना पड़ेगा। तो दैट इज द मैकेनिज्म। ये इंटरनली हो जाएगा कनेक्शन होती। तो लेट मी जस्ट वर्क ऑन दैट। सो फाइनली मैंने सॉकेट का कुछ प्रोग्राम डेवलप कर लिया। ओके, सॉकेट का कुछ प्रोग्राम लिखा। सो नाउ माय क्लाइंट ऑब्जेक्ट नेम इज S, माय क्लाइंट ऑब्जेक्ट नेम इज S इन द सेंस व्हाट? दैट इज एक्चुअली सॉकेट। मुझे यहां से डेटा सेंड करना है, देन आई नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। मुझे डेटा सेंड करना था। गाइस यहां कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आपको डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है? तो सर्वर से मुझे डेटा सेंड करना है, तो मैंने आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। बट आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मुझे डेवलप नहीं करना, इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड। जैसे ही कनेक्शन होता है वो बन जाता है। इसके पास ये इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। तो ये इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट, ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट एक्चुअली S1 के पास है। S1 इन द सेंस योर क्लाइंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ मेरे पास सिर्फ S था, तो मैं S को बोलूंगा, ओ सर सॉकेट सर, आई वांट आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, I want output stream object. So for that we have a function that is get output stream. The function name is get output stream. So guys, right now you have an object of output stream. Now you can just send the data. आप यहाँ से data send कर सकते हो. But now I have some question. Sir, output stream कौन सा पैकेज से है? So let me just check. अब ये मुझे ये function देखना पड़ेगा कि ये function मुझे क्या return कर रहा है. So पैकेज का नाम मिल जाएगा. So just open the command prompt. Just open the command prompt and just type one thing, java p java dot, okay, मुझे किसकी हेल्प चाहिए? I want an help of this S, because ये S का मेंबर है. So S is an object of socket. Socket is from the package java.net. So मैं यहाँ पे हेल्प के लिए लिखूंगा java.net dot socket. Please find out that get output stream function. उसको find out करें. कौन सा function मुझे find out करना है? Get output stream function. यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा. तो let me check. यहाँ देखते हैं. गेट आउटपुट स्ट्रीम आपको कहीं पे फाइंड आउट हो रहा, सॉरी कहीं पे दिखे तो बताइए। नो इट्स नॉट अवेलेबल अप टू दिस, यहाँ तो कोई नहीं है। प्लीज चेक दिस वन। सो इज इनपुट स्ट्रीम इज आउटपुट स्ट्रीम इज अवेलेबल। यहाँ पे मेरे पास इज इनपुट स्ट्रीम इज आउटपुट स्ट्रीम अवेलेबल है। ओके, उसी तरीके से गेट आउटपुट स्ट्रीम भी होगा। विजिबल है कहीं पे? Is input shutdown, is output shutdown, is closed, is bound, is connected, shutdown output, shutdown input. Some functions are there. Set keep alive, get keep alive, get so integer, get TCP no delay. Yeah, here it is. Just check this guys. Just check this.
कौन सा फंक्शन है, मुझे कौन सा चाहिए, आई वांट गेट आउटपुट स्ट्रीम। सो गेट आउटपुट स्ट्रीम को एक्सेस करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, ओ भाई आर यू पब्लिक, इट्स यस आई एम पब्लिक। सो पब्लिक मतलब क्लास के बाहर एक्सेस होगा। सेकंड क्वेश्चन आई विल आस्क, ओ आर यू स्टैटिक, सो गेट आउटपुट स्ट्रीम जस्ट रिप्लाई नो आई एम नॉट स्टैटिक। स्टैटिक नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा। तो किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, वी नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ, वी नीड ऑब्जेक्ट ऑफ सॉकेट, वी नीड ऑब्जेक्ट ऑफ सॉकेट। तो सॉकेट के थ्रू ही उसको एक्सेस करना है। वापस गायब हो गया, या हियर इट इज। Okay, now guys, what it returns? उसका return type क्या है? It returns output stream object, but output stream class is from actually java.io. So अगर आपने यहाँ पे output stream use किया, then what we have to do? We have to just import a package io. मैं देखो इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको मगअप नहीं करना है। Okay, यहाँ से देख के आप लिख सकते हो। Now another thing, it actually throws the io exception. So once again, this function also throws some exception. So what we have to do, either try and catch, otherwise throws exception. मैं already throws exception लिख चुका हूँ। So it will handle each and everything. Okay, so finally हमने पेंट ब्रश के हिसाब से हम लोग ये आउटपुट स्ट्रीम को अब जानते हैं। नाउ मुझे बस हेलो इसको दे देना है, आउटपुट स्ट्रीम को हेलो प्रोवाइड कर देना है। सो व्हाट आई डिड, मैंने पहले सर्वर सॉकेट स्टार्ट किया, मैंने क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मैंने एक्चुअली आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ आई एम रेडी टू राइट डाउन समथिंग। सो आउट डॉट, मुझे हेलो प्रिंट करना था, हेलो आगे फॉरवर्ड करना है, बट फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट। नो, प्रिंट तो नहीं होगा। So अब मुझे फंक्शन किसके चाहिए, now I want a list of function of output stream. So what we have to write down, guys, we have to write down java p java.io. Why io? Because output stream is from actually java.io package. Output stream is from java.io package. So we have to write down java.io dot output stream and more. So it will just list out all the functions. So just check, there are not so many functions, थोड़े से फंक्शन है मेरे पास। तो इसमें से मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है गाइस, वी कैन जस्ट, हमारे पास तीन फंक्शन ये वैसे देखो तो डेटा राइट करने के लिए वी हैव ओनली थ्री फंक्शंस, दैट इज एक्चुअली write with integer, so only single integer you can write with array of bytes and write with array of bytes and integer, so we have only three formats. So I will just use the first one. मैं write वाला पहला फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसमें एक्चुअली इंटीजर लिखा जाता है। So write in the bracket, let I say a, so मैं यहाँ से a पास कर रहा हूँ, but what will happen, हम लोग तो यहाँ पे एक्चुअली a पास कर रहे हैं, बट ब्रैकेट में इंटीजर लिखा था, दैट मींस व्हाट, उसका ASCII कोड पास होगा, उसका ASCII कोड यहाँ से पास होगा, दैट्स द थिंग। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। सो हमारा इस तरफ से डेटा पास करके सर हमने यहाँ से ये पेंट ब्रश में हमने जो डेवलप किया था, अब हेलो तो पास नहीं किया बट वी पास्ड ए, हमने यहाँ से ए पास कर दिया। सो यहाँ से ए पास होगा। ओके, अब ये जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था कि ये ए ऑटोमेटिकली इनपुट स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, बट ये इंटरनली ASCII कोड में कन्वर्ट करके भेजेगा। तो हमने यहाँ से ए लिखा था, यहाँ पे क्या पहुंचने वाला है, यस एनीवन, यहाँ पे क्या पहुंचेगा, ए का ASCII कोड क्या होता है, इट विल बी 97, तो यहाँ 97 पहुंचेगा। सो इफ क्लाइंट वांट टू रीड दिस डेटा, तो क्लाइंट को किस चीज का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लाइंट हैज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम, क्लाइंट हैज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम, बट एक्चुअली उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, उसको ऑब्जेक्ट गेट करना है by using this socket object. So what we have to write down on the client side, let me just define the client program, guys. So first of all, हम लोग को सबसे पहली चीज क्या चाहिए, we need void main to start the program, we need void main to start the program. Now here we have to just create an object of socket to just make a request. And सबसे पहली चीज हमारी होगी, अब IP address लिखेंगे, सर्वर कौन से IP address पे, after that the port number of the server, so actually server का port number हमने 1000 फिक्स किया। So that's that. Now ये बनने के बाद मेरा कनेक्शन हो गया, बट सर सॉकेट को सपोर्ट करने के लिए पैकेज चाहिए, that package is actually java.net. Another thing I require, that is actually throws exception. Why? Because this actually throws the exception, this socket constructor actually throws the exception. Now I want to just read the data. So what we require object of out input stream. So for that we have a function that is get input stream. Okay, so socket के through मैंने get input stream किया, it just return an object of input stream. And as we know right now, मैं directly लिख देता हूँ, input stream is from actually IO package. Input stream is from the IO package. Now my requirement is मुझे इसकी functions चाहिए, input stream के अंदर क्या function है. So let us just write down java p java.io.input stream. So there are lots of functions. Okay, but I want जैसे वहां से एक integer भेजा गया था, just check, यहाँ से मैंने a भेजा था तो a का मतलब 97. So only single integer is there. तो मुझे एक इंटीजर रीड करे ऐसा फंक्शन चाहिए। So here we have, what is the name of that function? It's a read. What it returns? It returns actually integer value.
It returns actually an integer value. So what I have to do here, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? I have to simply write out integer n is equals to each dot read. But guys, this function also throws the exception. This function also throws the exception. तो सब कुछ यहाँ पे handle है. So either you try and catch, otherwise just declare the exception after the void main. So finally, I am having a data. So let me just print this. So मैं यहाँ पे n print कर रहा हूँ. What's the expected output? Expected output is 97 because हमने fixed data send किया हुआ. Okay, expected output is 97. Okay, what is that 97? It's nothing but an ASCII code of this A. So now let I just close all these command prompts and let me open the fresh command prompt first. So right click on your title bar, on the program title bar, and just write down open containing folder in CMD. तो मैं सर्वर को रन कर देता हूँ. There are no errors. मैंने सर्वर को रन भी कर दिया. Now let me execute client. So that's that. जैसे ही client को run करेंगे, what will happen? 97 आना चाहिए. So here we have. Just check this. Here we have. Okay guys, एक बार मैं एक मिनट के लिए होल्ड दे रहा हूँ आपको. जिस प्रोग्राम देख लीजिए, कहीं पे कुछ प्रोग्राम में प्रॉब्लम है तो बताइए. Okay, just a moment. Yeah, fine. Yeah, fine. Guys, कुछ problem? So this is my client program. Why required input stream object? Because this figure says कि आपका data actually output stream, मतलब अगर server data forward करता है, so that data will be forwarded to your input stream. Client no input stream में. जैसे कि मैंने आपको example दिया था कि मैं यहाँ से कुछ भी बोल रहा हूँ, so that comes from my mic, and data आपको कहाँ पे मिलेगा? That will be forwarded to your speaker. और आप वहाँ से कुछ बोलोगे तो आपके mic में आएगा और यहाँ से मेरे speaker में आएगा. I hope that is clear to everyone. So now on a server side, what is my requirement? I require output stream. I require output stream object because I want to send something. Okay, just a moment. Okay, so actually मुझे यहाँ से data send करना है तो मुझे output stream का object चाहिए. यहाँ पे in the sense server side. So same mechanism is applicable on a client side also. So client अगर data send करना चाहता है तो client पे output stream का object बनाए and server पे input stream का object बनाए. Okay, so what is server? What is client? They are just a program, nothing else. They are just a program. Okay, so now main magic is like आप mainly आपको focus करना है on client and server, nothing else. Okay, mainly आपको focus करना है on client and server. That's it. So finally, अब मुझे ऐसा करना था कि सर server wants to say hello. मुझे एक a नहीं भेजना है. I want to just send hello actually. मुझे सिर्फ यहाँ से hello pass करना. So is it possible? Hello pass कर सकते हैं. So guys, we have like only 3 functions on an output stream. So let I just copy this. Okay, अब मुझे यहाँ से hello भेजना चाहता हूँ. Like I want to echo some message. Echo मतलब मुझे यहाँ से follow. Okay, client यहाँ से hello भेजना चाहता है. So client पे मैं message पहले से fix करता हूँ. मुझे यहाँ से hello चाहिए. String msg is equals to hello. Okay, so first of all तो मैं server socket बनाऊंगा because I want to just define the server. After that मैं socket मतलब client को accept करूंगा and client की information में socket को object के अंदर store करूंगा. मुझे data send करना है. Let me just once again go through this one. तो मुझे यहाँ से data send करना है तो मुझे output stream का object चाहिए. But अगर मैं यहाँ से hello भी send करूँ, अगर मैं यहाँ से hello भी send करूँ, then I cannot because output stream के पास एक character इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लाइक फॉरवर्ड करने की कैपेसिटी. आउटपुट स्ट्रीम एक कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट करके ही फॉरवर्ड कर सकता है. आउटपुट स्ट्रीम हैविंग सम लिमिटेशंस. सो व्हाट वी कैन डू, सर एक एक कैरेक्टर फॉरवर्ड करते हैं. इट्स नॉट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर लेना चाहता हूँ. स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर फेच करना चाहता हूँ. सो इज इट पॉसिबल? देयर आर लॉट्स ऑफ वेज. सो लेट आई जस्ट राइट डाउन अ फॉर लूप. So for I equal to 0, I less than msg dot length, I plus plus, I plus plus. Now I want to send only single one. Okay, मुझे एक यहाँ से कैरेक्टर भेजना है. So मैं एक ही जगह अब लिखूंगा message dot char at in the bracket. What is the use of that char at?
it just used to fetch a single character from a given position. तो पहले i का वैल्यू 0 है, तो 0th पोजीशन से कैरेक्टर लेगा, दैट्स एक्चुअली h. i का वैल्यू 1 होगा, it will just fetch the second character and on what it was. So what to do on a client side? मुझे क्लाइंट साइड पे क्या करना पड़ेगा? तो क्लाइंट साइड पे सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम तो ये है कि सर डेटा कितना रीड करेंगे. ओके, क्लाइंट साइड पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे ये है कि सर डेटा कितना रीड करेंगे. बट राइट नाउ मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि ओके यहाँ से 5 कैरेक्टर सेंड करने. मुझे क्लाइंट साइड पे लॉजिक नहीं पता, मुझे डेटा रीड करना है. आई वांट टू रीड द डेटा, so for that मैंने इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, but I have no idea how many times I have to just execute the loop. मुझे ये नहीं पता. So can I just do one thing? मैं एक ही बार इसको रीड करता हूँ, एक बार रीड करता हूँ. लेट आई चेक कि क्या आ रहा है, लेट आई चेक कि मुझे क्या मिल रहा है. So this is my server. No, I think server 6. Yeah, this is server 6 dot java. Let I run server firstly. On a client side, हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, मुझे पहला कैरेक्टर मिलना चाहिए. Let me run. Oh, 104. What is it? 104. 104 क्या है guys? So actually सर्वर ने क्या सेंड किया था? सर्वर just sends hello. तो h का ASCII कोड पहले जाएगा. I just told you यहाँ से पूरा हेलो नहीं जाएगा, एक कैरेक्टर पहले भेजेंगे, बट उसका भी ASCII कोड. सर अभी ये तो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है. तो यू कैन डू वन थिंग. आप जब डेटा फेच करोगे तो आप उसको कैरेक्टर में प्रिंट करने के टाइम आप कैरेक्टर में टाइपकास्ट करो. प्रिंट करने के टाइम क्लाइंट पे उसको कैरेक्टर में टाइपकास्ट कर दो. दैट्स दैट. So now once again let me run. अब h आना चाहिए. So पहले सर्वर एग्जीक्यूट करते हैं. सर्वर पर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया था, तो मैं रिकम्पाइल नहीं. क्लाइंट को कंपाइल कर चुका था. Now let me run. So just focus over here. There is an h. Now in the same way मुझे ये सेम चीज दूसरी बार मुझे दूसरा कैरेक्टर भी रीड करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 times 3 times प्रिंट कर रहा हूँ. तो अभी आउटपुट आना चाहिए हेल HEL. तो 3 वैल्यू मैं प्रिंट कर. सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं, क्लाइंट को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं. सो हियर वी हैव HEL. सर सेम लाइन में नहीं आ रहा. ओके, ln हटा दो. अब SOP ln मतलब प्रिंट system.out.println की जगह प्रिंट लिखो. दैट्स इट. सो इट विल बी फाइन. ओके, सो ऐसे ही मुझे 5 कैरेक्टर आ रहे हैं, मुझे पता है, तो मैं 5 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दूंगा. बट दिस इज द tedious टास्क कि सर 5 बार थोड़ी लिखा जाता है. हम लोग लूप चला लेते हैं ना, बट गाइस वी हैव नो आइडिया अबाउट द कंडीशन कि लूप कब टर्मिनेट करना है. तो 5 कैरेक्टर तो आ गए. नाउ लेट मी डू वन मोर थिंग. मैं एक और बार इसको कॉपी पेस्ट करूं, बिकॉज़ अब मेरे पास डेटा नहीं है. तो अब ये जो आउटपुट देगा मुझे उससे पता चल जाएगा कि दिस विल बी माय लूप, दिस विल बी माय कंडीशन फॉर लूप, अदरवाइज टू टर्मिनेट द लूप. सर्वर को रन करते हैं, क्लाइंट कंपाइल करके रन करते हैं. ओह, व्हाट्स द एरर? व्हाट इज द एरर? सर इट जस्ट से लाइक सॉकेट एक्सेप्शन. इट जस्ट से सॉकेट एक्सेप्शन मतलब सॉकेट बंद हो गया. क्लाइंट ने डेटा देने के बाद क्लाइंट का प्रोग्राम बंद हो गया. सॉरी, सर्वर आपको डेटा फॉरवर्ड करने के बाद क्लोज हो गया. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सर्वर आपको डेटा फॉरवर्ड करने के बाद क्लोज हो गया. दैट इज द प्रॉब्लम. तो ऐसे एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं. प्रोग्राम ऐसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं. हाँ भाई, सर्वर बंद हो, बट मान लो सर्वर अबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहा, अदरवाइज सर्वर का सॉकेट क्लोज नहीं हो रहा, वो दूसरा और कुछ काम कर रहा है, सर्वर का प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा 10 सेकंड. सो व्हाट विल हैपन? So let I just compile server and let me run. So let I just compile the client and let me run the client. So देखो अब एक्सेप्शन नहीं आया. तो अगर मैंने इनफाइनाइट लूप चलाई होती ना तो वो चलता ही रहता. इनफाइनाइट लूप चलाई होती तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता. So that's the problem. अभी क्यों बंद हुआ? Because 10 seconds हो गए, आपका सर्वर बंद हो चुका था. So what I am doing here, मैं एक बार इसको कैरेक्टर में टाइपकास्ट किए बिना रन करता हूँ. ओके, कैरेक्टर में टाइपकास्ट किए बिना प्रिंट करते हैं. Once again let I execute the server and let me check the client. Not the 5th, मुझे 6th वाला रन करना. So just check. Still it didn't print anything. यहाँ पे भी अभी कुछ प्रिंट नहीं कर रहा. So guys, this one makes some issues. अभी भी मुझे कुछ प्रिंट करके नहीं दे रहा. You saved or not? Yeah, we saved that problem. Okay, यहाँ पे उसको कुछ तो प्रिंट करना चाहिए, वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा. वो एक्सेप्शन ही थ्रो कर रहा है. सर वो आप पे वहां से कुछ डेटा नहीं आया तो मैं रीड कैसे करूँ? In short, the meaning is यहाँ से कुछ डेटा प्रिंट ही नहीं हुआ, यहाँ से सिर्फ हेलो आया था, तो यहाँ पे रीड कैसे कर? सो हम लोग को और कुछ यूज करना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली डेटा इनपुट स्ट्रीम. बट इफ यू डू नॉट वांट टू गो विद दिस अप्रोच, अगर आप ये पूरा का पूरा अप्रोच यूज नहीं करना चाहते, इतना टीडीएस अप्रोच यूज नहीं करना चाहते, देन गाइस यू कैन जस्ट डू वन थिंग. आप एक सेकंड अप्रोच यूज कर सकते हो. दैट इज, लेट आई जस्ट ओपन दिस प्रोग्राम फर्स्टली. सो जावा p java.io.output string. तो इस क्लास के प्रोग्राम फंक्शंस देखिए. हमारे पास दूसरा फंक्शन है बाइट, राइट इन द ब्रैकेट एरे ऑफ बाइट. राइट इन द ब्रैकेट एरे ऑफ बाइट, दैट इज द सेकंड अप्रोच. कि हम लोग यहाँ पूरा
बाइट का एरे बना के भेज सकते हैं। एंड ऑन ए क्लाइंट साइड हमारे पास इनपुट स्ट्रीम था। सो इनपुट स्ट्रीम पे डेटा कैसे फेच करें? अगर बाइट का एरे आया, बाइट का एरे आया तो डेटा कैसे फेच करें? डोंट वरी, हमारे पास रीड का भी एक फंक्शन है, और रीड में भी हमारे पास कुछ इस तरीके से, लाइक पब्लिक इंटीजर रीड बाइट एरे, पब्लिक इंटीजर रीड बाइट एरे। सो यू कैन जस्ट गो विद दिस अप्रोच। वहां से एक साथ ग्रुप भेजिए, यहाँ से एक साथ ग्रुप रीड करिए। सो व्हाट आई मीन टू से, यहाँ से मुझे ग्रुप भेजना है, ओके, मुझे ये लूपिंग वगैरह कुछ कंसेप्ट यूज नहीं करना, आई डोंट वांट टू यूज दिस कंसेप्ट। सो मुझे एक साथ बल्क ऑफ डेटा भेजना, os.write, और मैं एरे, बाइट का एरे भेजना चाहता हूँ, बट मेरे पास डेटा कौन से फॉर्मेट में है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सो इस स्ट्रिंग को मुझे बाइट में कन्वर्ट करना है। सो गाइस, अपने पास फंक्शन है गेट बाइट्स। ये गेट बाइट्स किसका फंक्शन है? दिस इज फ्रॉम स्ट्रिंग क्लास, दिस इज फ्रॉम स्ट्रिंग क्लास, जो आपको एरे रिटर्न करेगा। सो वो एरे मैंने कहां पे पास कर दिया? os.write में। तो ये फॉर लूप की जगह पे मेरा ये एक स्टेटमेंट वर्क कर लेगा। और सामने मुझे क्या करना है? क्लाइंट साइड पे मेरे पास एक बाइट का एरे होना चाहिए, लेट अस से b, एंड मुझे एक्चुअली कैपेसिटी पहले से फिक्स कर देनी है। मुझे कैपेसिटी पहले से फिक्स कर देनी है कि सर मुझे यहाँ पे एक्चुअली 1 KB का डेटा रीड करना है, 1 KB, इन शॉर्ट 1024 बाइट्स। Now let us just write down is.read is in the sense it's an object of input stream. It's an object of input stream. So is.read in the bracket b. Now how many, इसके अंदर देखो 1 KB का कैपेसिटी, बट आपने वहां से हेलो ही भेजा था। सो कितना डेटा रीड किया? कितना डेटा रीड किया वो मैं एन में स्टोर किया। ओके, सो फाइनली आई विल जस्ट एग्जीक्यूट द लूप हियर। मैं यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट करूंगा, आप इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो आपने जितना डेटा रीड किया वो आपके एन के पास है। नाउ जस्ट प्रिंट दिस। Okay, just to print that b of I, but ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? It will print an ASCII code. So what I will do, मैं इसको कैरेक्टर में टाइप कास्ट करूंगा। So it will print hello. It must print hello. So that is client 6, server 6 server, client 6 client. So here we have hello guys. Just check this. So it is pretty simple. अगर आपको functions पता है then आप उसका use कर सकते हो। Okay, but mechanism is similar. सॉरी, मैकेनिज्म इज सेम कि आप यहाँ से जो डेटा भेजोगे वो आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू भेजोगे, वहां पे जो डेटा रीड करोगे वो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू डेटा रीड करोगे। बट स्टिल मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर, ये तो अभी इंटीजर भेजना हो तो, फ्लोट सेंड करना हो तो, कैरेक्टर सेंड करना हो तो, दिस इज द ईजीएस्ट टास्क, ये तो प्रॉब्लम कर देगा मुझे। ओके, मुझे यहाँ से इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह वगैरह सेंड करना है तो मुझे मजा नहीं आने वाला, ये तो कुछ भी फालतू वाला काम काज कर रहा है। सो गाइस, फाइनली वी हैव सम मोर फैसिलिटीज इन जावा। आई होप दिस इज क्लियर। ये सबको क्लियर हुआ? ओके, तो मुझे अभी सिर्फ स्ट्रिंग भेजना है, मुझे ज्यादा कुछ कहानी नहीं करनी है, बट स्ट्रिंग भेजने के लिए भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ा। सो लेट मी जस्ट ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। बट मैकेनिज्म इज, पहले सर्वर डेवलप करना है, क्लाइंट डेवलप करना है, पहले सर्वर डेवलप करना है, क्लाइंट डेवलप करना है। आफ्टर दैट व्हाट इज अवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद हम लोग क्या कामकाज करेंगे? क्लाइंट एंड सर्वर का कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा? अगर सर्वर कुछ डेटा सेंड करना चाहता है, सर्वर कुछ डेटा सेंड करना चाहता है, तो सर्वर के पास आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, सर्वर आउटपुट स्ट्रीम का डेटा भेजेगा एंड वो आउटपुट स्ट्रीम का डेटा क्लाइंट के इनपुट स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। वो आउटपुट स्ट्रीम का डेटा, लेट अस से ये हेलो जो मेरे पास था, वो हेलो सर्वर से एक्चुअली आउटपुट स्ट्रीम में गया, तो क्लाइंट के इनपुट स्ट्रीम में पहुंचेगा और इस इनपुट स्ट्रीम से आप डेटा यहाँ रीड करा सकते हो। दैट्स द थिंग, ऐसा कुछ मैकेनिज्म है। ओके, सो हमको आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम के फंक्शन को देखना है। हमने थोड़े से फंक्शन, एक राइट और रीड, राइट विथ एरे एंड रीड विथ बाइट एरे, ये हमने डिस्कस किया। नाउ